Good afternoon, everybody. Okay. So good afternoon, everybody. Today I will start with a modern history lecture, and today's topic is the drain of wealth and phases of colonization and formation of Indian National Congress and their aims and objectives. And I will try to cover a moderate pace also, if it is possible to cover at a time. Okay, now let us start. What is the drain of wealth? Drain of wealth was put forward by the Dadabhai Naoroji in 1867. Okay, in 1867, it is a theory which had told that British are draining the wealth of India and they are transferring that all wealth to Britain. Okay, I told you that bullions. I told you in the previous lecture case of bullion when they were purchasing a raw material from India and they were giving the bullions to Indians. Okay, what is the bullion? Bullion is the coin. It can be a gold or silver. Okay, then at that time there was in this case there was that which country was having the more bullions, then there was a superpower country or they were a strong countries. So the Queen of Britain, she had told that, are you going crazy? Why we should pay the bullions to the Indians? Okay, every country wants to collect the bullions or they want to earn the bullions, and you are doing it reverse. You are giving that bullions to the Indians. So go and make that type of policies, which if we are going to giving them 10 bullions or 10 rupees, then in return we should get 100 rupees. Means at the most we are going to get 90 rupees profit. Okay. So from that time they started the exploitation of Indian economics, Indian industries, everything, Indian farmers, everything they exploited very rudely, and they started earning bullions. Okay. So this was put forward by the Dadabhai Naoroji in 1867. Dadabhai Naoroji is also known as the grand old man of India. Okay. Now let me talk in a detail about drain of wealth. Refer to the portion of national product of India which was not available for the consumption of its own people. Okay. इसका मतलब क्या था कि जो भी इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो तो बनता था तो वो तो इंडिया में, जो भी इंडियंस प्रोड्यूस करते थे वो तो बनता था तो इंडियन में, लेकिन अगर वो सुपीरियर गुड्स रहता था तो इट वाज नॉट फॉर द इंडियंस. ओके, इट वाज फॉर द ब्रिटिश. ठीक है, जो भी वो यहाँ से कमा के लेके जाते थे उसमें से एक भी पैसे वो इंडियंस को नहीं दे देते थे, या वो इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए वो पैसा नहीं लगाते थे, वो लेके जाते थे किधर? ब्रिटेन में. ठीक है, और अगर उन लोगों का सरप्लस प्रॉफिट हुआ तो वो सरप्लस प्रॉफिट भी उन लोग यूज करते थे इंडियन को एक्सप्लॉइट करने के लिए. ठीक है, अगर उन लोग को सरप्लस प्रॉफिट हुआ, जैसे कि उन लोग को हर एक साल 100 रुपए का फायदा हो रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल, और अगर उन लोग को 110 हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो 10 रुपए रहेगा वो इंडियंस को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए वो फिर से यूज किया करते. ठीक है, सो बट was the being drained away to Britain for the political reason, and the India was not getting a material return from it. ठीक है, बहुत सारा पैसा तो यहाँ से तो जाता था ब्रिटेन में, लेकिन बदले में इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था. उसके बदले में इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था. अगर देखा जाए तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में आ रहा था तब इंडिया का ही जो भी पैसा था, जो भी लोग ड्रेन करके यहाँ से पैसा वहां पर लेके जा रहे थे ब्रिटेन में, तो उस समय इंडिया का ही पैसा ज्यादा हेल्प किया था उन लोगों को वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने. ठीक है, जब भी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तब इंडिया का ही पैसा उन लोग को ज्यादा हेल्प किया था वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में. ठीक है,
और इसके लिए वो रेवोल्यूशन उन लोग सिर्फ वहां पर कर पाए, और वो रेवोल्यूशन उन्होंने इंडिया में नहीं किया कि अगर हम ये रेवोल्यूशन इंडिया में कर देंगे तो वहां पर उन लोग का इंडस्ट्रीज बढ़ेगा। ठीक है, उन लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1860 में कुछ हुआ था ना, 1860 में कुछ हुआ था वहाँ पर। हाँ 1860 में तो यहाँ पे जो भी हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पर जब भी हो रहा था तब यहाँ पर जितना भी पैसा था वो सीधा भेजा जा रहा था ब्रिटेन। ब्रिटेन में जितने भी हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जितने भी मशीन आई या जो भी वहां पर गुड्स मिला इंडस्ट्रीज को, वो सब इंडिया के पैसे से मिला, जो भी इंडिया का वेल्थ था उससे मिला। और इंडिया में उन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उन्होंने कुछ मतलब काम नहीं करके दिया, मतलब इंडिया को उससे एक रुपए भी उन लोग को रिटर्न नहीं मिला, उल्टा सरप्लस जो भी उन लोग कमाते थे वो सब इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने में ही उन लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते थे, और कुछ नहीं थी। उन लोग तो यहाँ पर आए थे ऐसा बिजनेसमैन बने। ठीक है, तुम लोग को एक ही मोटिव रहता था कि हम लोग को जाना है वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, चाहे इंडिया के लोग मरे या कुछ हो, मुझे उससे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, मेरा प्रॉफिट चाहिए। जितना इन लोग को निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को सिर्फ बुलियंस चाहिए, हम लोग को सिर्फ पैसे चाहिए। ठीक है, बट इट वाज फॉरवर्ड, जो भी ये सब कंडीशन जो भी ब्रिटिश कर रहे थे, तो पहले तो मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशन के पहले जितने भी एलाइड क्लासेस थे इंडियंस के, लोग सोचे थे ये नहीं ब्रिटिश ही एक है जो इंडियंस को मतलब जीने की एक कला सिखा सकते हैं, कैसे समाज में रहा जाता है, सोसाइटी को वही इसको सुधार सकते हैं, नहीं तो इंडियंस को कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन जो भी ये सब बात हुआ 1857 के बाद में उन लोग को समझ में आया कि नहीं कुछ तो ब्रिटिश ऐसा गलत कर रहे हैं कि ये रिवॉल्ट हुआ। तब जाके उन लोगों ने धीरे धीरे अपना एक्ट पढ़ना चालू किया, और यही एलाइड क्लासेस जो पहले ब्रिटिश को अच्छा मान रहे थे, वही 1857 के बाद में यही लोग अवेयरनेस फैलाएंगे कोने कोने में जाके कि ब्रिटिश के पॉलिसीज क्या है, ब्रिटिश के एक्ट क्या है। हम लोग ने भी जाके लंदन में रहा, वहां पर तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और यहाँ पर आपके एक्ट तो सीधा बता रहे हैं कि आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने के लिए हो। ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी एक्ट पढ़ेंगे वो नॉर्मल लोग कहाँ से पढ़ेंगे, उन लोगों को तो वो समझ में नहीं आएगा। जो भी एक्ट पढ़ेंगे वो तो वहाँ के पढ़े लिखे लोग ही पढ़ेंगे ना, इंडियंस जो भी पहले पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, तो उन लोगों ने ज्यादा अवेयरनेस फैलाया। तो उसमें से एक थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी को ये समझ में आया कि इन लोग ने मतलब जो भी वेल्थ इंडिया का उससे ड्रेन करके उसको पूरा निचोड़ के उन लोग ने ब्रिटेन में या ब्रिटेन की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने लगा के रखा है। अगर एक एस्टिमेट उन्होंने दिया था कि इन्होंने एक एस्टिमेट दिया था 1870 में 1870 में उन्होंने एक एस्टिमेट दिया था कि ब्रिटिश इंडिया से, उस समय का बात है 1870 में ब्रिटिश इंडिया से 12 मिलियन पाउंड पर ईयर लेके जा रहा है उस समय के टाइम। ठीक है, उस समय के टाइम पे 1870 में दादा भाई नेहरू जी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था कि 12 मिलियन पाउंड पर ईयर वो लोग इंडिया से ड्रेन करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर से आए थे ये जीवी जोशी। ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, जीवी जोशी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने भी इसको मतलब रेन ऑफ वेल्थ को उन्होंने और अच्छे से उन्होंने बताया था। मतलब दादा भाई नेहरू जी फर्स्ट थे, बाद में बहुत सारे आए जो इंडियंस को समझाने लगे कि हमारा वेल्थ कहाँ पर जा रहा है और हमारा वेल्थ कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो फिर बाद में आए थे जीवी जोशी। ठीक है, इन 18, ठीक है, इन्होंने बोला था कि करीब से करीब 25 करोड़ रुपीस इंडिया से पर ईयर जा रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला था जीवी जोशी ने इन 1888 में कि 25 करोड़ रुपीस पर ईयर इंडिया से लूट के लेके जा रहे हैं। फिर बाद में आए थे डी वाचर। डी वाचर इन्होंने बोला था 1890 में, इन्होंने बोला था कि 30 to 40
करोड़ पर ईयर इन लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो दादा भाई नहरी जी तो पहले से ये थियरी लाने के में, लेकिन बाद में ये दोनों दोनों लोगों ने भी, बहुत सारे लोग थे बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ को और अच्छे से समझाया था और अच्छे से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया था कि ब्रिटिश हमारे पैसे को करके आया। ठीक है, ड्रेनेज वेल को कौन लेके आया? दादा भाई, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखो, अभी ये जो भी ये ड्रेन वेल हो रहा था ना, तो इसमें मेजर टू कंपोनेंट है। एक था डायरेक्ट फ्लंडर, ठीक है, डायरेक्ट फ्लंडर, और दूसरा था प्रॉफिट अन थ्रू ट्रेड। ठीक है, एक था डायरेक्ट फ्लंडर, की गए, युद्ध किया, ब्रिटिश साइन की, ब्रिटिश ने इन लोग को इतना लूटा कि मतलब जितने भी फलंडर, जितना भी उन लोग की जो संपत्ति थी उसको हम लोग ने हक मार के उसका सब लेके आ गए। इन लोग ने बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर में क्या किया, जब मैसूर के साथ वार हुआ था तो क्या किया दोस्तों, इन लोग ने तो ये किया था ना। और सिखों के साथ वार हुआ था तो इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट फ्लंडर किया था उन लोगों ने, सीधा फ्लंडर, कि हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को इतना पैसा चाहिए, हमारा लॉस गया है वॉर में, ठीक है, आप लोग ये ट्रीटी साइन करो, हमको ये जगह दे दो, ये दे दो। उन लोग जगह पे ज्यादा क्यों वो फोकस करते थे कि नहीं, हाँ ये ब्रिटिश के हिसाब से ये 2 जमीन है या ये 4 जमीन है या इतना जमीन है, ये आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि उन लोग को वहां से मतलब डेली बेसिस पे उन लोग को वहां से इनकम चाहिए, और डेली बेसिस पे उन लोग को इनकम कैसे मिलेगा, जब उन लोग टैक्स या लैंड रेवेन्यू जब उन लोग कलेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो आप देखें ना, आप मैंने आप लोग को जितना भी ट्रेडिस बताया था, उन लोग ने उनके ट्रेडिस में जब वो हारते थे तब तो चुप बैठ जाते थे, और जब वो जीतते थे तो तब वो 2 चीज का मांग जरूर रखते थे, एक लैंड हमें देना है और एक वॉर कॉम्पनसेशन हमें देना है, जो कि करोड़ों में रहता है। ठीक है, और जब मराठा ने जब उन लोग पे कॉम्पनसेशन लगा था तो वो कुछ थाउजेंड में था, 43 या 45,000 भी कुछ लोगों ने लगाया था। और उन लोग जब भी वॉर कॉम्पनसेशन लगाते थे 1870s और 80th सेंचुरी में, तब उन लोग करोड़ में लगाते थे। ठीक है, और फिर बाद में 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, और ये कौन है, ये अवध के सुल्तान से तो सीधा 50 लाख रुपए मांग लिया था। तो उन लोग इसको बोलते डायरेक्ट प्लंडर। वॉर वॉर करो, उसको हराओ, ट्रेडिस करो, और उससे 2 चीज मांग लो, लैंड एंड वॉर कॉम्पनसेशन। लैंड क्यों? लैंड के वजह से क्या होगा, उन लोग का डेली इनकम रहेगा, इनकम उनका रोटेट होता रहेगा, लैंड लैंड रेवेन्यू वहां से ही लेंगे। ठीक है, और दीवानी राइट्स भी वो सीधा मांग के लेके जाते थे। तो ये सब उन लोग का होता था डायरेक्ट फ्लंडर। और एक फ्लंडर था प्रॉफिट अर्न थ्रू ट्रेड। ठीक है, ये कब चालू हुआ था ज्यादा करके, ये तो पहले से ही चालू हो रहा था, ये तो पहले से ही चालू हुआ था, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रेड, ये तो पहले से ही चालू होता, लेकिन ज्यादा कब हुआ था, जब चार्टर एक्ट 1813 जब पास हुआ, और तब ब्रिटिश का जो मोनोपोली था, ठीक है, इंडिया में वो खत्म हुआ, तब जाके वहां से जो उन लोग का जो खुला गेट कंपनीज का आने का, यहाँ पर कैपिटलिस्ट को यहाँ से आने का, वो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेनर आ गए। जब वो आ गए तो यहाँ के आर्टिशियन को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, लोकल ट्रेडर्स को बर्बाद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट जो भी बनाते थे बेचारे उन लोग को बर्बाद कर दिया, और वहां पर अपना जाके सामान उन लोग बेचने लगे। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर जाके सामान में बेचूंगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना सामान लाके अपना गुड्स लाके बेचूंगा तो लेगा कौन? ठीक है, लेगा कौन? इंडियंस को तो पहले ही वो अपना सिल्क का कुर्ता धोती ये सब पहनते थे ना उन लोग। ठीक है, तो अब हमारा पैंट शर्ट पहनेगा कौन? तो इंडियंस को आदत दिलाओ, इंडियंस को आदत दिलाओ कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, पैंट शर्ट, वो हैट, जैकेट, कोट, ये सब पहने। ठीक है, उन लोग को समझाओ कि तुम जो ये पहन रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें ये साबित कर रहा है कि तुम इंफीरियर हो, और अगर तुम ये पहनने लग जाओगे तो इससे साबित होगा कि तुम थोड़े से सुपीरियर हो। इसके लिए तो उन लोगों ने लाया था एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया था? उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इसके लिए लाया था, उन्होंने कुछ भी चीज हमारे भलाई के लिए नहीं किया। उन्होंने जो भी किया है
अपने लिए ही किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया? इन लोगों को एजुकेट करो, ठीक है। इन लोग का जो ब्लड रहेगा वो इंडियंस रहेगा, लेकिन इन लोग का जो ब्रेन रहेगा वो सब ब्रिटिश रहेगा, ठीक है। जब कोई इंडियंस अगर ब्रिटिश के स्कूल में जाकर पढ़ेगा तो क्या सीखेगा? वी इंडियंस आर इंफीरियर, ब्रिटिश आर सुपीरियर। उन लोग का रहना सहना, उन लोग कैसे पहनते थे, और जब वही जब बच्चा जब बड़ा होगा तब वो क्या करेगा? तब वो जाके यही पहनेगा, वो पैंट शर्ट कोट यही पहनेगा। और यहाँ के ट्रेडर्स को उन लोगों ने पूरा बर्बादी कर दिया। जितने भी ट्रेडर्स जो भी सिटी में थे वो अपना काम कर रहे थे, या हैंडीक्राफ्ट, या जो भी हाथ से कोई बना रहा है, या कोई कपड़े से कोई हाथ से कोई कपड़ा बुन के बेच रहा है, ठीक है। उन लोग को तो सीधा उन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। तो बचा ही कौन था उन लोग के पास? तो ले दे के इंडियंस को वो कुछ खरीदना ही था, ठीक है। तो वही यहाँ से लेके जाते थे 10 रुपए में, वहां से फिनिशिंग करके लाते थे 20 रुपए में, और हम लोग को छिपकाते थे 100 रुपए में। मतलब 80 रुपए का आराम से वो प्रॉफिट कमा के लेके जाते थे, ठीक है। तो दो टाइप के कंपोनेंट है। पहले वाला कौन? डायरेक्ट प्लंडर। वॉर करो, ब्रिटिश करो, दो चीज मांग लो, लैंड मांग लो, ठीक है। पार्ट ऑफ इट्स किंगडम, जो भी लैंड है, जो भी समंदर के साइड में या ट्रेडिंग के लिए बहुत सबसे अच्छे जगह है वो मांग लो, या फिर वॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है। वॉर कॉम्पनसेशन, आपके वजह से हमारा इतना लॉस गया, आप हमें कॉम्पनसेट करो, ठीक है। और एक होता था इनविजिबल ड्रेन, ठीक है, जिसको मतलब इतना जल्दी लोगों को समझ में नहीं आया। ये जो इनविजिबल ड्रेन है ना, ये समझाने का काम किया था इन लोगों ने। इनविजिबल ड्रेन को समझाने को काम किया था इन लोगों ने। सबसे पहले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, फिर बाद में जीवी जोशी, फिर बाद में दी वाचा, ठीक है। इन लोगों ने सबसे पहले, फिर बाद में आए थे रोमेश चंद्र दत्ता, ठीक है। इनके बारे में और भी आगे बताऊंगा, रोमेश चंद्र दत्ता। तो ये चार लोगों ने इनविजिबल इनविजिबल फ्लंडर बताया कि ब्रिटिश हमको इनविजिबली कैसे फ्लंडर कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट, सैलरी एंड पेंशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। जो भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर जो भी इंडिया में था, वो उसका सैलरी इंडिया इंडिया के पैसे से जाता था। और वो जब रिटायर होकर लंदन में बैठता था तब उसका पेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से ही जो भी पैसा जाता था, ठीक है, यहाँ से पैसा उन लोग को दिया जाता था एज अ पेंशन। तो सबसे पहले सैलरी एंड पेंशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, ओके। सेकेंड वाले में आते हैं, स्टोर परचेज इन ब्रिटेन फॉर द सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। स्टोर परचेज मतलब कोई फाइल खरीद लिया, पेपर, बुक्स, पेन, पेंसिल, ठीक है, जो भी मतलब काम की चीज है, स्टेशनरी, मान के चलो स्टेशनरी ऑफिस के लिए, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल के लिए, तो वो भी रबर बांधने वाले जो भी है वो सब इंडिया के ही पैसे से आएंगे, ठीक है। हम अपने पैसे से कुछ नहीं खरीदने वाले। थर्ड था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। जो भी लोन ये ब्रिटिश लोग जो भी इंडियन गवर्नमेंट में घुसे थे, या यूं बोल सकते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, इन लोग जो भी लोन ले रहे थे इंडिया के लिए, उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से चुकाते थे? यहीं से चुकाते थे, ठीक है। 10 लाख रुपए लिया था उन लोग, हाँ। और भी उन लोगों ने बहुत सारे लोन लेके रखे थे कि हमको अपना इंडिया चलाना है, वहां पर अपना बिजनेस रन करना है। तो उन लोग को लोन का जो इंटरेस्ट था वो कहाँ से भरा जा रहा था? इंडिया के पैसे से भरा जा रहा था। फिर बाद में प्रॉफिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट में, कौन से चार्टर एक्ट था वो, इसमें 10% डिविडेंड इंक्रीज कर दिया गया था। 10% डिविडेंड इंक्रीज कर दिया, नहीं वो 13 के बाद वाला था। चार्टर एक्ट 1833 और 1853, ये दोनों में से एक था जहां पर 10% डिविडेंड ब्रिटिश इन्वेस्टर का बढ़ा दिया गया था। तो वो डिविडेंड कौन दे रहा था? हम इंडियंस ही पे कर रहे थे, ठीक है। और पांचवा था, सरप्लस फ्रॉम ब्रिटिश इकोनॉमिक री एंटर टू फाइनेंस कैपिटल इन इंडिया। अगर ब्रिटिश कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो फिर से पैसा यहाँ पर लगाएंगे, 100 रुपए फिर से यहाँ पर लगाएंगे। 100 रुपए अगर उन लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो फिर से 100 रुपए यहाँ पर लगाएंगे, और वो 100 रुपए पे उन लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी कमा के लेके जाएंगे, ठीक है।
तो उन लोगों ने ऐसा ऐसा मतलब प्लंडर किया था कि इट वाज अ इनविजिबल प्लंडर। ओके, इट वाज अ इनविजिबल ड्रेन, जो हम लोग को आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आराम से उन लोग प्लंडर करके लेके जा रहे थे। तो वो सब प्लंडर को ये लोगों ने, जो भी था, इन लोगों ने बताया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। नेशनल क्रिटिक्स ऑन द कॉलोनियल इकोनॉमी। सबसे पहले तो दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, केम विद द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन इन ब्रिटेन। ठीक है, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ब्रिटेन में, समझाने के लिए कि देखो ब्रिटिश हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इन लोग मतलब हमारे इकोनॉमिक्स कितना चोट पहुंचा रहे हैं, इन लोग हमारे इकोनॉमिक को निचोड़ रहे हैं। तो ये काम करने के लिए इन्होंने बनाया था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। फर्स्ट टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन ऑन लिबरल पार्टी टिकट। ठीक है, ये पहले इंडियंस थे जो वहां पर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन में वो इंग्लैंड में वो इलेक्ट हो गए थे लिबरल पार्टी के टिकट। ठीक है, अब कोई तो उनको टिकट देगा लड़ने के लिए, तब जाके वहां पर जाके वो इलेक्ट हो गए थे हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, उन्होंने और एक न्यूज़पेपर निकाला था, ये सब प्रीलिम में पूछे जाते, एकदम एग्जाम में पूछे जाते, इसके लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। फिर बाद में उन लोगों ने हाँ इंडियन एसोसिएशन उन्होंने आई विल सी यू लेटर दैट ईयर्स। ठीक है, ईयर है ना उसमें से कब खुला था इंडियन एसोसिएशन? नहीं दिया। 1850 1851। ओके, ये वाला दादा भी एनर्जी वाला था ना वो। कौन सा था वो? कौन सा है वो? ठीक है, तो फिर वो बाद में देख लेना, पहले लेक्चर में ध्यान दो। डेट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने और एक न्यूज़पेपर लाया था, न्यूज़पेपर वाज रस रस गोफ्तार रस गोफ्तार। ठीक है, इन्होंने और एक न्यूज़पेपर लाया था जिसका नाम था रस गोफ्तार। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। वो 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया प्रीलियम में, which of the following leaders were the more time or maximum time president of Indian National Congress? तो वो दादा भाई नेहरू जी थे, जो 3 बार बन चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 3 बार बन चुके थे। फिर बाद में आए थे जस्टिस गोविंद रानाडे, उन्होंने भी बहुत सारे काम किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर। बाद में आए थे रोमेश चंद्र दत्ता, हिज बुक वाज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्ता, हिज बुक वाज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ड्रेन, और ड्रेन का इफेक्ट क्या होगा? ड्रेन ऑफ इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा? वो ज्यादा वो पड़ेगा 2 चीज पे, एक तो इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल। ठीक है, बाद में पड़ेगा किस पे? तीसरे पे सोशल पे। ठीक है, सोशल पे। तो फर्स्ट वाला वाज इकोनॉमिक इफेक्ट, रियल कॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ड्रेन, नॉट ओनली लॉस ऑफ द वेल्थ बट ऑफ द लॉस ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो भी हम लोग का इंडियन का उस समय जो इकोनॉमिक बैकवर्ड का सिचुएशन था, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के वजह से हो रहा था, जिससे हमारा दोनों जा रहा था, वेल्थ भी जा रहा था और कैपिटल भी हम लोग का इंडिया से बाहर ब्रिटेन में जा रहा था। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, यहाँ पर ऑफकोर्स मैंने बताया था आप लोग की आर्टिशियन का जॉब जा रहा था, हैंडीक्राफ्ट का जॉब जा रहा था, उन लोग भाग रहे थे फार्मर बनने अपने गांव में, कि हम लोग जाके गांव में खेती करेंगे। लेकिन उन लोग से लैंड रेवेन्यू इतना बढ़ाया था
कि उन लोग उनसे जमीन भी छीन गया, बाद में वो सीजन बन गए, किसी और के जमीन पे जाके वो काम करने लगे, तो उन लोग का तो जॉब तो जा ही रहा था। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है। फिर बाद में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जितने भी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे, मतलब कपड़े का कारखाना जो भी हाथ से बनाते थे या क्राफ्ट, उन लोगों ने उसे सब बर्बाद कर दिया था, सब तहस नहस करके छोड़ दिया था। फिर बाद में पीजन वेर ऑल्सो अफेक्टेड एज द हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, सो एवरीबॉडी वाज अफेक्टेड बाय दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर बाद में आता है पॉलिटिकल इफेक्ट। पॉलिटिकल इफेक्ट, national leader highlighted the drain of wealth through the paper, book, newspaper etc, ठीक है। इसका पॉलिटिकल इफेक्ट इंडिया के ऊपर अच्छा ये हुआ कि जो भी हमारे नेशनल लीडर्स है, इन लोगों ने इसी मुद्दे को उठाया और इसी मुद्दे को उन लोगों ने न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्पलेट्स में छपवाया, और लोकल अगर लैंग्वेज में छाप दो कुछ भी न्यूज़पेपर, अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मराठी में छाप दो क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ, तो वो तो हर आदमी पढ़ेगा, ठीक है, कॉमन से कॉमन आदमी पढ़ेगा, तो उन लोग को और वो समझ में आएगा कि मैं उन लोग को क्या बोलना चाहता हूँ। इससे अवेयरनेस बढ़ेगा कि आखिर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ये है क्या, ठीक है। तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ हम लोग बोल सकते हैं कि इसने और मतलब बूस्ट किया था, मतलब लोगों को अवेयर किया था ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जैसे कि रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट होने से पहले तो कोई भी तो ये नहीं बोल रहा था कि हम लोग को इंडिया के लिए लड़ना है, सब लोग तो अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे। तो फिर बाद में लीडर्स को ये पता चला कि इन लोग को एक लाना पड़ेगा, ठीक है, इन लोग में नेशनहुड लाना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग ना ना महाराष्ट्र के, ना साउथ के, ना नॉर्थ के, ना बिहार के, ना बंगाल के, हम लोग सिर्फ इंडियन से, एंड आवर कॉमन एनिमी इज ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ने जो ये निकाला था थियरी ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उसको बूस्ट करने में, नेशनलिज्म को बूस्ट करने में ड्रेन ऑफ वेल्थ ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको और उसने बूस्ट दे दिया। वो रिवॉल्ट के टाइम पे हुआ, तो आप मिक्स क्यों कर रहे हो? वो काऊ और पिग के ऊपर वो रिवॉल्ट हुआ था, वो रिवॉल्ट के बारे में बात करें। भगत सिंह अब अभी कहाँ पर आएंगे वो? मार दिया था एंग्लो सिख वॉर के टाइम। नो, ही इज टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्ट। तो वो रिवॉल्ट अलग और ये नेशनलिज्म अलग। वो जब रिवॉल्ट हो रहा था तो कोई भी अपने आप को इंडियन नहीं बोल रहा था, कोई अपना महाराष्ट्र में रिवॉल्ट लेके चला था, कोई अपना नॉर्थ में रिवॉल्ट, पंजाब साइड में तो हुआ ही नहीं था, बंगाल बिहार साइड में रिवॉल्ट लेके चला था, कोई दिल्ली साइड में। तो वो रिवॉल्ट वाज नॉट अ नेशनलिस्ट, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं कि इट वाज अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इट वाज नॉट अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इंडिया के हैं, नहीं, वो लोग अपने अपने स्टेट के लिए वो लड़ रहे थे। तब जाके लीडर्स को पता चला कि अब इन लोग को एक करना पड़ेगा, और तब जाके बताना पड़ेगा वी ऑल आर वन एंड आवर नेशन इज ओनली वन, दैट इज इंडिया। नेशनहुड को बढ़ाना है और आवर कॉमन एनिमी इज ब्रिटिश, ठीक है। जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भी दादा भाई नेहरू जी ने जो थियरी लाया था, इट हैड प्लेड द वाइटल रोल इन दिस अवेकिंग द पीपल अबाउट द ब्रिटिश रूल, अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड दिस वाज डन बाय द मेनी लीडर्स। उन लोगों ने जो भी ड्रेन ऑफ वेल्थ था उसको कॉमन लैंग्वेज में, न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट में, मैगजीन में सब छपवाया और लोगों में बांट दिया कि ऐसा ऐसा बात है। तब जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम लोग को एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इफेक्ट वही है, इन 17th century, इन अर्ली 18th century द ईस्ट इंडियन कंपनी यूज्ड टू इंपोर्ट बुलियंस, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर टू टर्न ऑफ 20 million and access where for purchasing the goods in India, ठीक है। ज्यादा उन्होंने फ्लंडर कहां से किया था? बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, बाद में बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765,
ठीक है, ये तीनों से इन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्लंडर किया था, और मैसूर से तो उन लोगों ने सीधा आधा उनका राज ही छीन लिया था। बाद में 3 करोड़ रुपए भी मांगा था उनके 2 बच्चे को लेके, उठा के लेके, तो अगर तुमको इन छुड़ाना है तो हमें तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा 3 करोड़ रुपए, तब हम तुम्हारे बच्चे को, ठीक है। तो इन लोगों ने हमेशा प्लंडर ही किया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक शॉर्ट में मैं 3 बात में बोल सकता हूँ, ठीक है। ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ओके। सेकेंड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट, ओके। एंड थर्ड वन इज एक्सपांशन मेड बाय द कंपनी ऑफिशियल। ये तीन बातें पे मतलब मोटा मोटा ये 3 चीज पे बेस बना के उन लोगों ने वेल्थ इंडियंस का जो वेल्थ था उसे ड्रेन किया, ठीक है। ये 3 बात, ठीक है। तो ये भी पूछेंगे कि कितना रुपए लिया था, अमाउंट नहीं पूछेंगे, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल दिया। अगर मतलब यूपीएससी के मेंस में लिखना हो तो उसमें ऐड कर सकते, बस ऐसे ही, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑन इंडियन इकोनॉमी, आप लोग बताइए क्या इम्पैक्ट रहेगा, मतलब ऐसा सिंपल। इंडिया पे उस समय के इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, मतलब उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था, देवर राइट चीजों में मोनोपोली हो गया, एवरीथिंग, लॉस ऑफ जॉब्स एंड लॉस ऑफ it had exploited all the sections of the Indian society, with peasant were the most worst victims, ठीक है। जो peasant थे उन लोग तो एकदम worst victim थे इन लोग की exploitation। Second was drainage of wealth of Indian wealth became the major sources of finance the industrial revolution in England, and it also the reason why the revolution did not take place in India। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया के पैसे से इन लोग ने वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर दिया और इंडिया को कुछ नहीं मिला, उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला, बल्कि वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फिर से यूज किया गया इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ किसने लेके आया था? कौन लेके आया था ड्रेन ऑफ वेल्थ? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, वो थियरी किसने लेके आया था? कौन लेके आए थे वो थियरी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, कौन लेके आए थे? कौन लेके आए थे? नौरोजी, NAORAJ, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं, वो अलग, वो आगे चल के आएंगे, मॉडरेट फेज में आगे, बहुत आगे चल के आएंगे, अभी नहीं आएंगे। गांधी जी अभी तो उनको आने का वक्त है, अभी तो आप लोग को पूरा वो साउथ अफ्रीका का भी समझाना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि एग्जाम में वहां के भी क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने बहुत भी वहां पर जाके काम भी किया था, ठीक है। फिर बाद में इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म में क्या इफेक्ट गिरा है, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म पे क्या इफेक्ट गिरा था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ठीक है। ब्रिटिश बाहर क्या बोल रहे थे वर्ल्ड में कि हम लोग इंडिया में इसके लिए है क्योंकि हम उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, उन लोग बहुत इकोनॉमिक के बैकवर्ड में है, तो हम लोग उनके इकोनॉमिक को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोग मतलब एक पट्टी बांध के रखा था बाहर के देश पे कि हम लोग इंडिया में इसके वजह से क्योंकि हम लोग उसे डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए। और जब दादा भाई नेहरू जी ने जाके जब ये सब थियरी जब उन लोग के सामने रखा कि नहीं देखो हम लोग का हालत ये है, इन लोगों ने हमारा ऐसा हालत करके रखा है, तो वी आर गेट एक्सप्लॉइटेड, उन लोग हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा उन लोग हमारा और हालत खराब कर रहे हैं, उल्टा हम लोग और उनसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में ना इट लेज द फाउंडेशन
for the demand of Swaraj, which was raised by the extremist leader such as the Tilak. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, तो it was the base. ठीक है, उनके दिमाग में ये बात बैठ गया था कि हमारा जो इतना वेल्थ है ये लोग ड्रेन करके लेके जा रहे हैं, तो अगर मैं स्वराज में कैसे भी करके इन लोग से मांग लूं तो मतलब इन लोग इतना वेल्थ यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, हम लोग अपना अच्छे से मैनेज हम लोग कर लेंगे. तो ऐसा बोला जाता है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का जो थियरी था, इट वाज द फाउंडेशन फॉर डिमांड ऑफ स्वराज which was made by the extremist leader लोकमान्य तिलक. ठीक है, okay, the demand of Swaraj was mentioned in the 1906 in the sessions of Congress at Benares, can be seen as the direct outcome of the drainage of wealth. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं बोलता हूँ, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा चुका है कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज का डिमांड या स्वराज का मांग कौन से सेशन में रखा था. तो 1906 सेशन मींस 1906, ठीक है, 1906 ईयर में एट द बनारस सेशन में उन्होंने स्वराज का मांग रखा था. ठीक है, जो कि सीधा रिजल्ट था किसका, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थियरी. ठीक है, ओके. फिर से मैं बनारस से, बनारस पहले बनारस बोलते, बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म इन 1934. हां, 1934 नहीं, एक कभी होता है 18. क्या है, नहीं बताओ ना सर, पूछ रहा हूँ आपको. आगे है तो आगे में आराम से मैं आपको मैं बता दूं. ठीक है, आगे है, आराम से मैं आपको बता दूं. ठीक है, मैं आपको मैं सेशंस बता रहा हूँ और उसकी डेट बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप ध्यान दो. ठीक है, आगे है और है, मैं आपको धीरे धीरे में बताते जाऊँ, यू डोंट टेक टेंशन. ठीक है, तो 1905 में इन्होंने मांग किया था बनारस सेशन में कि हम लोग को स्वराज उन्होंने मांग किया था 1906 में सेशन में बनारस सेशन में कि हम लोग को स्वराज लेना है, मतलब हम लोग को डिमांड करना है ब्रिटिश से कि हम लोग को स्वराज चाहिए. ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट वाज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ. ठीक है, समझा समझा. कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडियंस. ठीक है, तो इसको ड्रेनेज ऑफ वेल्थ खत्म हो गया. अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते. ठीक है, किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट सबसे पहले आता है, इसको रब कर दो. सबसे पहले आता है मर्चेंटाइल स्टेज. फिर बाद में आता है इंडस्ट्रियल स्टेज. फिर बाद में आता है फाइनेंशियल स्टेज. ठीक है, तो ये आर पाल्मेडट ने ये स्टेजेस उन्होंने दिया था कि ये 3 स्टेजेस में ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया है और ये 3 स्टेजेस में ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, ये जो थियरी था किसने दिया था, आर पाल्मेडट ने. ठीक है, ओके. इन फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, मर्चेंटाइल स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला इसका स्टेज का ईयर में लिख दिया था, इसका मर्चेंटाइल 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 स्टेज. ठीक है, कहाँ पर लिखा, कहाँ पर लिखा, मर्चेंटाइल स्टेज. ठीक है, यह आया था 1757 टू 1813. ठीक है,
यहाँ पर इन लोग का सबसे पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था कि मोनोपोली इन ट्रेड एंड डायरेक्ट प्लंडर। ठीक है, जब इन लोगों ने पहला स्टेज किया था वो 1757 में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था ना। कौन सा युद्ध था वो? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो वहां से उन लोग का क्या था इंटेंशन कि पूरे इंडिया पे मोनोपोली ट्रेड करना और डायरेक्ट प्लंडर। ठीक है, डायरेक्ट प्लंडर कैसे करते थे? ब्रिटिश के साथ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था उन लोग का यहाँ पर मर्चेंटाइज में कि मोनोपोली इन ट्रेड एंड डायरेक्ट प्लंडर। ठीक है, सेक्यूरिंग ट्रेड एंड कमर्शियल इंटरेस्ट बाय focusing on eliminating the rivalries of the European power present in India and eliminating the Indian ruler who create the obstacle। ठीक है, हम लोग जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उसको हम लोगों को सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करेंगे? दो टाइप में, जो भी हमारे जो राइवलरी है यूरोपियन या जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है यूरोपियन, एक तो उसे हटाओ, और जो भी इंडियन स्कीम, जो भी इंडिया का किंग है जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है उसे भी हम हटाएंगे। ठीक है, तो पहले की स्टेज में इन लोग का थिंकिंग ये था, ऐसा सब इन लोग के दिमाग में चल रहा था। ओके, स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड थ्रू चार्टर एंड राइट इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी इन लोग को चार्टर इशू कर रहे थे या जो भी राइट इन लोग को इशू कर रहे थे, तो उससे इन लोग को अपना ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग करना था। ठीक है, पहले के फेज में इन लोग सिर्फ बिजनेस के ही बारे में सोच रहे थे। ठीक है, हम लोग अपना बिजनेस कैसे सिक्योर करेंगे, तो इन लोग जो राइवलरी इन लोग को हटाओ, इंडियन किंग को मारो, जो भी हमारे बीच में आ रहे हैं ट्रेडिंग के बीच में उनको मारो, और फिर बाद में जो भी राइट्स जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल रही है, जो भी एक्ट, जो भी चार्टर का जो भी फायदा जितना उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ, अपना ट्रेड को सिक्योर कर लो, अपना ट्रेड को बढ़ा दे लो। ठीक है, डायरेक्ट प्लंडर बाय द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, जब उन लोग ट्रेड के लिए लड़ने लग गए, ठीक है, तब अच्छा बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग जो भी फरमान उन लोग को मिला था दस्तक, उन लोग ने उसका गलत इस्तेमाल किया था, मिसयूज किया था। ठीक है, और एक उन लोगों ने फोर्टिफिकेशन किया। सिराजुद्दौला को जब हरा है तो उन लोग को लगा कि अच्छा मैंने इसको हरा दिया तो ये एरिया भी मेरा हुआ, तो मैं उसको ऐसे भी प्लंडर करूंगा, इससे सीधा कॉम्पनसेशन भी लूंगा और यहाँ से रेवेन्यू भी। ठीक है, उन लोग तो पहले ये सब करते बिजनेस के लिए, और जब इन्होंने देखा कि ठीक है अब लैंड हमारे कब्जे में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो हम ऐसे भी प्लंडर करेंगे, वॉर कॉम्पनसेशन भी लेंगे और लैंड के रेवेन्यूज भी लेंगे, दीवानी राइट भी लेंगे, सीधा हम प्लंडर करेंगे वहां से बीच के सब जितने भी पैसे उतने सब हम लेके जो भागेंगे यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे। मेड नो मेजर चेंज इन द एग्जिस्टिंग टाइम इन इंडिया। मतलब यहाँ पर इन लोग का यही सब अभी तक चल रहा है। तो कब से कहां तक? 1757 से लेके 1813 तक यही चल रहा है। मतलब बोलूं तो इन लोग का यहाँ पर दो पार्टी चल रहा है, एक तो बिजनेस करो और एक डायरेक्ट फंडर करो, वॉर करके उन लोग से पैसा लो और उन लोग से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। ठीक है, फिर बाद में आएगा इंडस्ट्रियल स्टेज। ये कब आता है? ये आता है 1813 से लेके 1860 तक। 1860 तक, ठीक है, 1813 से लेके 1860 तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक तो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड अ रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा वहां पर तो उन लोग को कहीं से तो चाहिए रॉ मटेरियल, तभी तो उन लोग फिनिश गुड्स बना पाएंगे। तो कौन बचा था सबसे सस्ते वाले, जो सस्ता भी रहे और अच्छा भी रहे? तो इंडिया से डायरेक्ट रॉ मटेरियल लो, ठीक है, ब्रिटेन में भेजो, वहां पर फिनिश गुड्स बनाओ और वहीं यहीं के लोगों को आके वो बेचना चालू करो और वो बाकी यूरोप में भी बेचो। ठीक है, तो उन लोग को मतलब बहुत ही फायदा हो रहा था। यहाँ से चीप अमाउंट देके उन लोग से ज्यादा रॉ मटेरियल लेके जाओ और वहां पर अपना सीधा उसको फिनिश करो। ठीक है, शोड अ क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स द EIC, मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी मोनोपोली। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेज पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, तो मैंने क्या बोला था
कि वहां के जितने भी ट्रेडर्स हैं उन लोग भी डिमांड करेंगे, या वहां के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो डिमांड करेंगे हम लोग को भी जाना है इंडिया में और हम लोग को भी वहां पर बिजनेस करना है। तो उन लोग किसको अपोज करेंगे? मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी को, कि इसको ही क्यों देके रखा है, हमें भी जाना है, हमें भी वहां से प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, तो हमको भी जाना है वहां पर, फिर से हमें प्रॉफिट करना है, हम लोग को भी वहां से प्रॉफिट कमा के लाना है अपने देश में। और ज्यादा मांग कब उठा? जब नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को, नेपोलियन ने जब कॉन्टिनेंटल थ्योरी लाया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जब उसने पूरा लगा दिया था कि मैं और मेरे जितने भी अलाइज हैं, मतलब फ्रेंच और उसके जितने भी अलाइज हैं, ब्रिटेन से हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ब्रिटेन को ना ही माल बेचेंगे और ना ही वहां से माल हम खरीदेंगे। कौन नहीं खरीदेंगे? मैं मतलब फ्रेंच और उसके जितने भी अलाइज थे वो नहीं खरीदेंगे। ये कब हुआ था? जब नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल एक्ट या कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसने लगा दिया था। वो उसका सीधा प्लान था कि ब्रिटिश वो सीधा समझ गया था ब्रिटिश का मेन पावर है उन लोग का इकोनॉमिक्स, अगर उन लोग के इकोनॉमिक्स को मैंने तोड़ दिया, इकोनॉमी को तोड़ दिया तो ये कमजोर हो जाएंगे, इनका आर्मी सब कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन लोग को बैकअप सपोर्ट कहां से था? इंडिया से था, ठीक है, उन लोग का बैकअप सपोर्ट कहां से था? इंडिया से था, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब तो मांग तो बढ़ी रही थी कि हम लोग को भी इंडिया में जाना है, इन लोग का जो मोनोपोली आप खत्म कीजिए, हमको भी जाने दीजिए। लेकिन ये मांग तेज तब हो गया जब नेपोलियन ने चार्टर पॉलिसी, सॉरी कॉन्टिनेंटल पॉलिसीज या कॉन्टिनेंटल सिस्टम वहां पर जब उसने वहां पर लागू कर दिया था। तब क्यों? क्योंकि उन लोग जो वहां पर ट्रेड कर रहे थे यूरोपियन में, उन लोग का ट्रेड हो गया था बंद, तो उन लोग का लॉस जा रहा था। तो उन लोगों ने मांग किया कि नहीं, अब आपको हटाना ही पड़ेगा। तब क्या आया था? चार्टर एक्ट 1830 लाया गया था, जिससे पूरा जो है गेट पूरा ओपन कर दिया गया कि ठीक है, जो भी नए इंडस्ट्रीज है वो सब अब इंडिया में जाके खुद भी अब ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अब आप लोग इंडिया में जा सकते हो। तो यहाँ से एफर्ट्स वाज मेड टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशिंग द ग्रेट सोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हम लोग को जाना है इंडिया का जो भी ग्रेट रिसोर्सेस है, हमें उसे अपने आप को वहां पर एस्टैब्लिश करके वहां पर हमें और उन लोग को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। पहले तो सिर्फ एक ही था, ईस्ट इंडियन कंपनी था, तो उसने इतना लूटा था, आगे तो और भी आएंगे तो वो तो और लूटेंगे, ठीक है। फिर बाद में इतने बड़े इंडिया का पॉपुलेशन भी ज्यादा था, तो यहाँ से उन लोग का दो फायदा हो रहा था, एक तो रॉ मटेरियल भी मिल रहा था और उन लोग को यूज मार्केट भी मिल रहे, ठीक है। इतने लोग तो यूज मार्केट तो है। Actually, they used to export most of the things जो बाहर बेचते थे, जिससे सब लोग थोड़ी ना पहनते थे इंडिया में, क्योंकि वो लोग जो पहनते थे वो सब लोग थोड़ी ना पहनते थे। जितने भी एलाइट क्लासेस थे या जितने भी प्रिंसली स्टेट के जो भी प्रिंसेस थे, उन लोग तो पहनेंगे ही ना। जिनके पास इतना पैसा होता था तो उन लोग पहले क्या पहनते थे? सिल्क अपना पहनते थे, ठीक है, पैजामा धोती जो भी था वो सब सिल्क का रहता था। तो उन लोगों ने वो सब उसको बंदी कर दिया और अब आप लोग को पहनना है सीधा हमारा पैंट शर्ट जीन्स हैट और कोट, ठीक है। और उस समय फैशन भी बन गया था इंडिया में कि हाँ, जिसने भी कोट पैंट और हैट वो हैट लगाएगा वो दे विल बी द वेरी स्मार्ट, ठीक है, वो ब्रिटिश के लेवल का हो जाएगा। तो उन लोगों ने ऐसा मतलब भर दिया था हमारे दिमाग में कि जो भी ये धोती कुर्ते पहनने वाले उन लोग इंफीरियर है, और जो भी ये पैंट शर्ट पहनने वाले तो उन लोग दे आर सुपीरियर, दे आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है। तो फिर बाद में तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी आए ना, तो they also refer this western clothes which were brought by the Britishers। उन लोग को बहुत बड़ा मार्केट भी मिल रहा था यहाँ। फिर बाद में इसके वजह से हो गए स्ट्रक्चर इंडियन सोशल इन अकॉर्डिंग टू द कैपिटलिस्ट एंड social structure, so they brought the new education policies,
डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रेलवे एंड टेलीग्राफ एंड पोस्ट। ठीक है, उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं लाया था। हम लोग का माल कोने कोने में जाना चाहिए, देश के कोने कोने में जाना चाहिए, और देश के कोने कोने से जो भी रिसोर्स है वो सब हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाए, इसके लिए वो लेने के आए थे रेलवे। ठीक है, हम लोग को कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो लेके आए थे पोस्टेज। ठीक है, और जो बोलते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं कि ब्रिटिश ने बहुत अच्छा काम किया था एजुकेशन पे, तो वो हमारे लिए तो सही था ही, क्योंकि उससे ही हम लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिला, और हम लोग समझते हैं कि हम लोग का एक्सप्लोइटेशन किस हद तक हो रहा है। लेकिन उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाया था अपने फायदे के लिए, कि इंडियंस ही हमारे लिए काम करे और हमारा जो भी मटेरियल है इन लोग यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हुआ इंडस्ट्रियल स्टेजेस। अब मैं स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल। दिस इज द फेज 3। इसका मैं डेट देता हूं, 1860 से लेके 47 तक, सॉरी 1947 तक। इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेजेस और थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रमोटिंग द फॉरेन कैपिटल, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट बेसिस। ठीक है, सिंपल बात, फॉरेन कैपिटल हम लोग को इंडिया में लाना है। अगर किसी को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो क्या करेगा, वो कैपिटल रेस करेगा, वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, तभी तो पैसा आएंगे बिजनेस में, तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों का सिंपल फंडा था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, फॉरेन कैपिटल लाओ। ठीक है, फॉरेन कैपिटल तो हम लाके दे देंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि आपके इंडिया में हमारा फॉरेन कैपिटल सेफ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया था कि हम लोग ने पूरा इंडिया भी अब हम कब्जा करेंगे। जब पूरा इंडिया हमारा है तो आपका तो फंड तो सेफ ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। और जैसे इन लोगों ने पूरे इंडिया पे कैप्चर कर लिया, मतलब पूरा जब क्राउन का रूल जब आ गया इंडिया पे, तब फॉरेन कैपिटल भी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत तेजी से आने लगे, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे, क्योंकि उन लोग को यहाँ से बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल रहा था साल के साथ। ठीक है, मोर मनी, जब मोर मनी होगा देन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड एक्सपांशन ऑफ रूल। ठीक है, जब आपके पास मनी नहीं रहेगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे, रूल क्या करोगे, और अपने डिफेंस पे क्या खर्चा करोगे। ठीक है, तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा था, तो मोर क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस भी बढ़ा रहे थे। और जब डिफेंस बढ़ेगा, तो जब ये दोनों चीज बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस तक मोर एक्सपांशन। ठीक है, तभी तो इन लोगों ने सीधा अफगानिस्तान तक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। ठीक है, वहां तक इन लोगों ने पूरा अपना एक्सपांड करके रख दिया था अच्छे से। तब जाके अब जाके बर्थ हुआ इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये रख कर दो ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed by the British civil servant A.O. Hume. ठीक है, A.O. Hume, he was the British retired civil servant in December 1885 in Bombay. ठीक है, with the 72 delegation, and the president was the Umesh Chandra Banerjee. ठीक है, उमेश चंद्र बैनर्जी। A.O. Hume was a retired civil servant, British official. ठीक है, उसने बॉम्बे में दिसंबर 1885 में, he was the Britisher, I'm that only saying, no, he was the retired civil servant officer, ठीक है, of Britain, मतलब वो ब्रिटिश ही था। he was a retired civil servant British, A.O. Hume, जिन्होंने बॉम्बे में 1885 में, दिसंबर 1885 में उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। तो पहला प्रेसिडेंट कौन था, मैंने अभी बताया था, प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बैनर्जी। यहाँ पर सीधा इंपीरियल नेशनल कांग्रेस, पहले था। देखिए, जो भी मतलब मैंने बताया ना, वो पहले का पॉलिटिकल एसोसिएशन,
कांग्रेस के आने से पहले, वो सब अब एक साथ में आके वो सब अब मिलेंगे। मतलब इधर ये इसको इंपीरियल नेशनल कांग्रेस ही बोलते हैं ना, जब वो ये हाँ हाँ, जब ये यूनियन निकाला था तब उसको इंपीरियल बोलते थे, बाद में इट वाज इंडियंस ने चेंज किया, बाद में उसको वो बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फिर बाद में पहला मीटिंग किसके साथ हुआ था? सिर्फ देयर वर ओनली 72 डेलीगेट्स। ठीक है, सिर्फ 72 पर्सन के साथ वो मीटिंग हुआ था और वहां पर ही फॉर्म कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। भोमेश चंद्र बैनर्जी, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, फॉर्म किसने किया था? A.O. ह्यूम। सर आपने बोला था 3 साल का एक प्रेसिडेंट था, 3 साल नहीं, 3 बार मैंने बोला, 3 बार। वो कंटिन्यूअस नहीं थे, लेकिन वो 3 बार थे। लोकमान तिलक नहीं थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, किसके थे प्रेसिडेंट को? इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो 3 बार प्रेसिडेंट को रह चुके। ठीक है, अभी आएंगे वो 3 बार? नहीं, अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जब मैं वो सब जब एक साथ में जब कांग्रेस के जो सेशंस बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस के सेशंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट जो रहेगा तो मैं यहाँ पर मैं अच्छे से चार्ट बना के मैं समझाऊंगा। और जो भी बड़ा जो भी उन लोग ने जो एक्ट पास किया था, सॉरी मतलब उन्होंने एक एम पास किया था, हम लोग को इस साल ये अचीव करना है, तो ये अचीव तो करना है, तो वो कहाँ पर लाया था वो सेशन? उस समय का प्रेसिडेंट कौन था और वहां पर क्या क्या बातें हुई थी, वहां पर क्या पास हुआ था, और उन लोग का वो मांग पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये सब मैं अच्छे से चार्ट बना के आपको मैं दूंगा और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में। नहीं पूछा तो नहीं पूछा, अच्छा है ना कि एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर नहीं पूछा तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा और क्या। फिर बाद में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का मिथ बन गया। ठीक है, एक मतलब मिथ बन गया। अच्छा, उस समय का वॉइस, अच्छा उस समय वाइसरॉय था या गवर्नर जनरल? वाइसरॉय था। ईशा पक्का ना? गवर्नर ऑफ बंगाल तो नहीं था ना? पक्का वाइसरॉय था उस समय। कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफली नहीं, लॉर्ड डफरिन। डफरिन DUFFERIN, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो पहले जो था, पहले जब ये फॉर्म हुआ तब बाद में एक मिथ बन गया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडियंस को यूज किया है कि अब दोबारा ये रिवॉल्ट ना बने, इसके लिए इन लोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। सर लेकिन ब्रिटिशर ने बनाया, हाँ उसने क्यों बना? वही तो मैं अभी में बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय के जो लीडर्स थे, खास करके लाला लाजपत राय, वो क्या बोल रहे थे कि ब्रिटिश ने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लिए बनाया है कि जो भी रिवॉल्ट 1857 में हुआ है वो दोबारा ना हो। इंडियंस को हम एक ऐसे स्टेज हम दे देंगे कि इंडियंस वो स्टेज पे आके अपना बात रखेंगे, उन लोग का जो प्रॉब्लम है उन लोग उस पर अपना प्रॉब्लम रखेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन होगा कि उसमें से अगर 10 मांग रखी है तो जो सिंपल 1-2 मांग है उसको पूरा कर देंगे, ताकि इंडियंस को खुश रहेंगे वो, ताकि हाँ चलो ब्रिटिश हम लोग का मांग को पूरा कर रहे हैं। ऐसा मिथ है कि ब्रिटिश A.O. ह्यूम ने इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था, क्योंकि दोबारा कोई रिवॉल्ट 1857 वाला फिर से ऐसा रिवॉल्ट हो ना, क्योंकि उस समय फिर से जो भी कॉमन पीपल थे या जो भी इंडियंस के पीपल, इंडिया के पीपल्स थे, उन लोग के दिमाग में फिर से ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ते जा रहा है। आपको जब इतना फ्लंडर करोगे, जब इतने नए नए रूल और लॉ लाओगे तो गुस्सा तो बढ़ेगा। तो गुस्सा को रोकने के लिए, मतलब दोबारा ये ऐसा ना हो, तो इसके लिए उन लोग ने एक बेस तैयार करके दे दिया कि ठीक है, ये तुम लोग का एक मतलब पार्टी है, तुम लोग को जो भी बात करना है यहाँ पर आओ करो, ब्रिटिश पे मांगो, जो करना है वो करो, लेकिन वो ब्रिटिश के ऊपर रहेगा। कोई एक डिमांड करके पूरा दे दिया तो दे दिया, नहीं तो तुम लोग जाओ। ठीक है, तो ऐसे मतलब है बिपिन चंद्र का एक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें मतलब मैंने
पढ़ा है कि मतलब ऐसे ही, मतलब उसमें लिखा है कि एओ ह्यूम को ऐसा मतलब कहीं से उसको पता लगा कि हो सकता है कि अब फिर से इंडिया में रिवॉल्ट हो जाए। ठीक है, उसके 3 कारण बताए जाते हैं। लास्ट वाला तो मतलब बहुत ही वो जोकफुल था। तो फर्स्ट वाला कारण ये बताया गया कि सीआईडी का रिपोर्ट, ठीक है, सीआईडी का रिपोर्ट, ऑफ कोर्स ही वाज अ सिविल सर्वेंट, तो उनका कुछ तो कनेक्शन होगा। तो सीआईडी का रिपोर्ट उन्हें उन्हें मिला था, और सीआईडी की रिपोर्ट में बोला गया था कि अब इंडिया का इंडियंस का जो इंडियंस है, उन लोग का गुस्सा और बढ़ते जा रहा है, और हो सके कि उन लोग फिर से रिवॉल्ट कर दे। ठीक है, सेकेंड वन, एक ऐसा बताया जा रहा है कि उनके कोई इंडियन लीडर्स, कोई दोस्त थे जो काफी फेमस थे इंडियन पीपल के बीच में, तो उन्हें बोला था कि नहीं यार, इस बार मतलब गुस्सा और बढ़ते जा रहा है, हो सके तो इस बार फिर से रिवॉल्ट होने के चांसेस है। और तीसरा तो एक मतलब वहां पर लिखा था कि उन्हें किसी हिमालय में रहने वाले बाबा ने बता दिया कि अब रिवॉल्ट होगा बेटा, तुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तू जाके ये सब तू फॉर्म तू कर दे। ठीक है, तो ये सब 3 बातें बताई जा रहा है। पता नहीं उनको सीआईडी रिपोर्ट या उनको सपना है क्या आया था, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने फॉर्म करके दे दिया था कि ये आप लोग का स्टेज है, आप लोग को जो भी काम करना है इस पे करो। और उन्होंने लॉर्ड डफरिन से मिलके उन्होंने उनसे ही परमिशन लेके उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने फॉर्म किया था। तब जाके लाला लाजपत राय ने भी, मतलब उनका एक तो यही एक सोच था कि इन लोग जो भी लीडर्स है वो यूज हो रहे हैं, ब्रिटिश इनको यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। ठीक है, इन लोग मिलके इंडिया का फायदा नहीं कर रहे, इन लोग को ब्रिटिश यूज कर रहे हैं। जब लाला लाजपत राय का जब उन लोग का जब समय आया, तब लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ऐसे सोच मतलब वो रखते थे कि ब्रिटिश ने इन लोग को यूज किया है, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश का यूज नहीं किया, ब्रिटिश ने इन लोग का यूज किया। ठीक है, जो कि ये काफी गलत है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे काम भी करके दिए। तो फिर एक मतलब एक रियलिटी, इसके बारे में और एक थियरी है। पहले मैंने क्या बताया था, मिथ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा रियलिटी। ऑल रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लीडर बिकेम अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। पहले पहले मैंने आपको एक उतने सारे मैंने एसोसिएशन बताए थे, बॉडीज बताए थे, उन लोग एक एक तो था वो लैंड होल्डर, वो सब जमींदार के लिए था, सब लोग अपना छोटा छोटा लेके बैठे थे। तो इससे क्या हुआ कि ऑल रिलीजन, मतलब जितने भी रिलीजियस के आदमी, जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, जितने भी अलग अलग इतने फॉर्मेशन थे एसोसिएशन के, वो सब एक साथ आ गए। सबसे तो पहला फायदा ये हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दादा भाई नेहरू जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स के नाम है। अभी मैं आगे में इन लोगों को और अच्छे से मैं डीपली में पढ़ाऊंगा एक एक लीडर के ऊपर, क्योंकि एक एक लीडर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाए। ठीक है, लीडर्स के नाम सुन लो जो मॉडरेट फेस थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, फिर बाद में डी बाचा, फिर बाद में डब्ल्यू सी बैनर्जी, उमेश चंद्रा बैनर्जी, फिर बाद में एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, they come together to form a Indian National Congress rather than A.O. Hume using Congress leader as a safety wall. It was the Congress leader who hoped to use A.O. Hume as a light conductor. ठीक है, लाला लाजपत राय ये बोल रहे थे कि ये जो A.O. ह्यूम है, उसने एक सेफ्टी वॉल उसने तैयार कर ली। ठीक है, सेफ्टी वॉल वो थियरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो ह्यूम है उसने एक सेफ्टी बेल बना के दे दिया कि ठीक है अब आप लोग इस पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया था कि इससे हम लोग सेफ रहेंगे, इससे रिवॉल्ट होने का खतरा कम रहेगा। लेकिन रियलिटी मतलब जो ये है रियलिटी है, रियलिटी कुछ ऐसा है कि एओ ह्यूम ने लीडर्स को यूज नहीं किया, हमारे लीडर्स ने एओ ह्यूम को यूज किया एज द लाइट कंडक्टर। ठीक है, ये एक अंधेरे में एक रोशनी का दिया हमें मिल गया। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अब इसको ही हम डेवलप करेंगे, इसमें ही हम अपने आप में इतने मजबूत हो जाएंगे कि अब हम यहाँ से अपना मांग हम ब्रिटिश पे पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तो काफी मतलब सही है थियरी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे काम किया, या तो हम लोग मॉडरेट फेज में देखें या एक्सट्रीमिस्ट फेज में देखें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बार काम किया। तो
इससे क्या पता चलता है कि ये ह्यूम ने सिर्फ यूज करने का सोचा था, लेकिन वो यूज कर नहीं पाया। हमारे लीडर्स ने उसका यूज अच्छे से इस्तेमाल करके उसका अच्छे से रखा है, तब जाके बहुत सारे काम हो पाए। ठीक है, एम्स क्या था जब वो कांग्रेस फॉर्म हुआ था, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था? सबसे पहला एम था नेशन बिल्डिंग। ठीक है, सबको एक साथ लाना है। ठीक है, नेशन बिल्डिंग, then rotation of the session, वो कैसे होगा? rotation of session and president not from the home state। देखिए, अब जैसे कि पहला सेशन होगा बॉम्बे में, ठीक है, दूसरा सेशन होगा कहीं और, ठीक है, तीसरा सेशन होगा कहीं और, मतलब वो सेशन घूमते ही रहता था। और वो ज्यादा करके वो सिटी में नहीं होता था, कहीं पर बंगाल के तो पिछड़े गांव में चले गए, वहां पर सेशन रख दिया, या महाराष्ट्र के किसी पिछड़े गांव में चले गए, वहां पर सेशन रख दिया। ठीक है, ज्यादा करके सेशन इन लोग के अब पिछड़े गांव में होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वहां तक हम लोग का जो आइडियोलॉजी है वहां तक पिछड़े गांव तक जा सके। ठीक है, और जो लीडर रहता था वो स्टेट का नहीं रहता था। जैसे कि अगर बंगाल में हम लोगों ने सेशन रख दिया, तो जो लीडर रहेगा वो बंगाल के बाहर का रहेगा, या तो मुंबई का रहेगा, या तो वो कहीं साउथ का रहेगा, ठीक है, या तो वो कहीं का मतलब पंजाब साइड का, ये साइड का रहेगा, लेकिन वो स्टेट का वो लीडर नहीं रहेगा। इससे क्या हुआ कि अगर हम देश में घूम घूम के अगर हम लोग अपना सेशन रखेंगे और लीडर अलग अलग स्टेट्स के बुलाएंगे, तो उससे ये मतलब ये हम लोग फैलाएंगे कि हम लोग में अभी लीडरशिप, और हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हम लोग का नेशनहुड बढ़ेगा। ठीक है, तो वी विल बिकम अ वन नेशन। तो उन लोग का पहला ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज द नेशन बिल्डिंग। फिर बाद में क्रिएट और इंडिया लीडरशिप। ठीक है, एक ऐसा लीडर है जो मतलब पूरे इंडिया को साथ में लेके चले। ठीक है, फिर बाद में तो आगे तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने सब इंडिया के डिमांड को साथ में लेके चला, पूरे इंडियंस को साथ में लेके चला, और बहुत सारे उन लोगों ने अचीव भी किए। टेकिंग अप द इशू प्रॉब्लम विच वेर कॉमन इन रिलेशन टू ऑल। ठीक है, हमें एक ऐसा इशू उठाना है कि जिसके लिए मतलब वो हरेक के लिए एक कॉमन है। अगर मैं बोल दूं कि ठीक है, कल मैं जाके लैंड रेवेन्यू के ऊपर मैं बात करूंगा, या मैं लैंड सिस्टम के ऊपर बात करूंगा, तो वो किसका हो गया? वो जमींदार के साइड का हो। ठीक है, तो कॉमन पीपल लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मुझे वो इशू को राइज करना है जहां पर सब कॉमन पीपल का मतलब सब लोग का उसमें अपना हक हो, अपना हक छुपाओ, और सब लोग का ये एक इशू हो, एक सब लोग का एक कॉमन इशू हो। तो एक ऐसे कॉमन इशू को मुझे वो स्टेज पे जाके राइज करना है और ब्रिटिश के सामने उसे रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि लोगों को समझ में आए कि नहीं, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो हमारे लिए भी काम कर रहा है। इससे क्या होगा? मास मूवमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, और ये मूवमेंट और ये जो पार्टी है ये और बड़ा होगा। ठीक है, और स्ट्रांगली हम ब्रिटिश से अपना डिमांड हम उनके सामने रख पाएंगे, और उनसे हम अच्छे से डिमांड करके हम उनसे वापस अपना जो भी हक, अपना हक है, वो हम अपना हक ले पाएंगे। ठीक है, ओके। मॉडर्न पॉलिटिक्स ट्रेनिंग टू द पीपल। ठीक है, अभी पहले के मतलब एक नॉर्मल आदमी को क्या पता कि ये पॉलिटिक्स होता क्या है? ठीक है, तो इन लोगों का और एक ऑब्जेक्टिव था, टू ट्रेन अ पीपल। ठीक है, टू literate a people about a politics, to educate a people, a common people, that what is a politics, आखिर ये politics होता क्या है, और ये हम politics क्यों कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, और किसके खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, to educate a people about the politics। ठीक है, formulate and present popular demand before the government with the view to unify the people over the common economic and political program। ठीक है, जो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के जो भी एक कॉमन इशू है, चाहे वो इकोनॉमिक का इशू ले लो, या पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल इशू ले लो, तो वो सब इशू को हम लोग को एक साथ आके ब्रिटिश के सामने एक कॉमन इशू को लाके हमें राइज करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, ओके, समझ में? ठीक है, तो who was the first president of Indian National Congress?
वोमेश चंद्र बैनर्जी। बोलिए बोलिए, चांदनी बोलिए। सिद्धेश कौन था? प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। फॉर्म किसने किया था? AOU। कहाँ पर फॉर्म हुआ था? मुंबई। हाँ, वो तो इंडिया में तो हुआ ही था। वो इंडिया में नहीं हुआ तो कहाँ पर हो? लेकिन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में ना, बॉम्बे में। कौन सी ईयर पे हुआ था? 1885। 1885, ठीक है। कोई भी 4 मॉडरेट लीडर का मुझे नाम बता दो। फर्स्ट जस्टिस रानडे, फिर उसके बाद जीवी बच्चा क्या बाचा, कोई भी 4, वही जो इसने बोला वही। कौन थे 4? लाला लाजपत राय was not a moderate. Lala Lajpat Rai was not a moderate. He was not a moderate. He was the extremist leader. He was not a moderate. Lala Lajpat Rai was not a moderate. I've asked about the moderate leaders. He was not a moderate. लाल बाल पाल भी एक्सट्रीमिस्ट थे सर। फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कल्पेश, come on, सेमी लीडर। सर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वोमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एंड सर वो वाचा डी वाचा, ठीक है। स्पेल कीजिए उसको। सर ने वहां लिखा था WACH वाचा, ACH वाचा, अभी WACH वाचा, वही इसीलिए वाचा है ना वो। लोग वहां समझ रहे थे। ठीक है, English mercantile. Not mercantile. Yes sir, break लेते। ब्रेक लेते। म्यूट कर दीजिए। सर लॉक किया करो ना फोन। नहीं, अब अभी नहीं ब्रेक लेंगे, अभी टाइम है ब्रेक। 1.5 घंटा हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर खत्म। 1.5 घंटे में सर ब्रेक नहीं ले रहे हो? अनलिमिटेड होगा सर। अभी टाइम है ना ब्रेक। कौन सा टाइम है? ठीक है, तो 5 एक्चुअली आपने 1 बजे देना चाहिए। 5 मिनट का लेते हैं ब्रेक। That was the percent
मी 0 मध्ये काढून देतो. आता कशाला टेन्शन घेऊ. and location. चलो चालू करते, ठीक है। इन लोग का मेथड्स, ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे इन लोग का मॉडरेट फेज। अब हम लोग चालू करेंगे इन लोग का मॉडरेट फेज, ठीक है। मॉडरेट फेज, तो मॉडरेट फेज इन लोग का है Yeah. 1885 to 1905, ठीक है। इन लोग के लीडर्स को कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी एंड एस.एन. बैनर्जी। एस.एन. बैनर्जी मतलब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. they were the main importance, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये इन लोग के मतलब ज्यादा पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं ये मॉडरेट फेज खत्म होने के बाद में एक एक को मैं डिटेल में पढ़ा हूँ, ठीक है, एक एक को मैं डिटेल में पढ़ा हूँ। तो इन लोग के मेथड्स क्या आते हैं? बिलीव दैट प्रेजेंटिंग द पीपल डिमांड एंड पीपल ओपिनियन टू द ब्रिटिश बाय द पेटिशन, रिजोल्यूशन, डेलीगेशन, पैम्पलेट एंड मीटिंग जस्टिस, ठीक है। दे वर नॉट बिलीव इन वायलेंस, ठीक है। उन लोग किसी भी तोड़ फोड़ को या उसको मार इसको मार, उन लोग मतलब वायलेंस में वो बिलीव नहीं करते थे। वो अपना बात रखते थे और डिमांड वो, अगर हम लोग को ब्रिटिश से अपना डिमांड मनवाना है तो ये कुछ बात हम लोग करते थे। सबसे पहले पेटिशन, रिजोल्यूशन, डेलीगेशन, पैम्पलेट एंड मीटिंग, ठीक है। ये सब बातों से, ये सब स्टेप से हम लोग ब्रिटिश से अपना बात मनवाते थे और उससे अपना जो भी पॉइंट उन लोग को चाहिए था वो ब्रिटिश से ये मेथड में वो उन लोग से मांगते थे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो देयर वेर द मेथड ऑफ 3 P's, ठीक है। देयर वेर द मेथड ऑफ 3 P's। सबसे पहले था प्रेयर, फिर बाद में रहेगा पेटिशन, फिर बाद में रहेगा प्रोटेस्ट, ठीक है, फिर बाद में रहेगा प्रोटेस्ट, ठीक है। 3 P's। सबसे पहला हो तो हम प्रेयर करेंगे, मतलब अच्छे से मनाएंगे कि हमें ये चाहिए, आप हमें ये पॉइंट है हमारे, इसको आप, ये हमारे डिमांड है, इसको आप पूरा कीजिए। नहीं माना तो हम पेटिशन करेंगे, ठीक है, पेटिशन डालेंगे, पेटिशन से मांगे कि हम लोग को ये दीजिए। अगर फिर भी नहीं माने तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे, ठीक है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया, ठीक है। इन लोगों ने काफी कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने काफी अच्छा डिमांड रखा था ब्रिटिश के सामने, और काफी अच्छा इन लोगों को रिस्पॉन्स भी मिला था। इन लोगों ने बहुत सारे काम किए थे मॉडरेट वाले ने। बस इन लोग का एक ड्रॉबैक था कि इन्होंने मासेस को इन्होंने अट्रैक्ट करने में ये नाकाम रहे। ये मतलब जो भी ज्यादा मासेस, जो एक्सट्रीमिस्ट ने जितने मासेस को उन लोगों ने अपने साथ में लेके चला था, उतना इन लोग नाकाम रहे थे, इतना इन लोगों ने लोगों को अपने साथ वो नहीं जुड़ पाए, ठीक है। ये एक इन लोग का ड्रॉबैक था, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट जो भी अभी आगे आएंगे, तो उन लोगों ने ज्यादा लोगों को अपने साथ उन्होंने लेके चला था। और उनसे भी ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी थे, जो भगत सिंह, ये सब मतलब जो सीधा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते, लोगों को मार देते, तो उन लोगों ने भी ज्यादा अट्रैक्शन लिया था पीपल्स, ठीक है। बस इन लोग का ये ड्रॉबैक था कि इन लोगों ने मासेस को या बहुत सारे पीपल्स को अपने साथ वो नहीं लेके चल पाए थे, ये इन लोग का ड्रॉबैक, ठीक है। तो इन लोग के हम लोग डिमांड देख लेते हैं। फर्स्ट डिमांड वाज कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में क्या आता है? एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली एट सेंटर एंड प्रोविंस, ठीक है। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपांड करो, और उस एक्सपेंशन में इंडियंस को लाओ। और जो तुम्हारा जो असेंबली है वो तो सेंटर में है ही, लेकिन तुम्हें वो असेंबली स्टेट लेवल पे भी आपको वो चालू करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट डिमांड
कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में उन लोग का फर्स्ट डिमांड ये था, एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली एट द सेंटर एंड प्रोविंस, ठीक है। सेकेंड वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जो कि पहले तो वाइसरॉय तो इसको मानेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप लोग क्या मांग क्या रहे, मतलब कुछ भी मांग रहे हो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ, भले ही बोलोगे हम आपको लेजिस्लेचर में हम लोग आपको एक्सपांड करके हम वहां पर बैठा देंगे, लेकिन आप सीधा एग्जीक्यूटिव में मांग रहे हो, तो हम लोग वो उन लोग को अभी देंगे भी नहीं, वो एकदम बाद में देंगे, ठीक है। क्लास में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोग देना चालू करेंगे, लेकिन अभी तो ब्रिटिश ने बोला कि नहीं, ये तो हम आपको दे ही नहीं सकते। ये आपने क्या मांगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दिस इज इम्पॉसिबल, वी कांट गिव। बाद में डिमांड था, डिमांड ऑफ स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि हम लोग को अपना स्वराज चाहिए, हम लोग रूल आपका ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से हम अपना चलाएंगे, हम लोग का स्वराज्य रहेगा, ठीक है। फिर बाद में मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन द हायर पोस्ट, जो भी आपने इंडियंस को जो आपने हायर पोस्ट में नहीं रखा, सिर्फ आप लोअर पोस्ट पे रखा है, तो आप इंडियंस को हायर पोस्ट भी दीजिए। और कंट्रोल ओवर बजट, फिर से ब्रिटिश ने बोला कि फिर से कुछ भी डिमांड, कंट्रोल ओवर बजट वो तो लास्ट तक नहीं मिलता। कंट्रोल ऑफ बजट वो सेंट्रल में तो 1995 में भी नहीं, 1935 में भी नहीं मिलता, तो तुम लोग को हम अभी कहां से दे, ठीक है। इन लोग को तो स्टेट के लेवल पे मिलता है ना कंट्रोल 1935 में, तुम लोग हम अभी कहां से दे। कंट्रोल ऑफ बजट कुछ भी मांग रहे, सबसे पहला इन लोगों ने मांगा था ये एक्सपांशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो असेंबली है उससे तुम आप ओपन करो, कहां पर, सेंट्रल लेवल पे तो आप तो कर ही रहे हो, आप स्टेट लेवल पे भी करो। सेकेंड पॉइंट मांगा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ब्रिटिश के लिए ये इम्पॉसिबल, वी कांट गिव यू। डिमांड ऑफ स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन हायर पोस्ट एंड कंट्रोल ओवर बजट, मतलब ये भी इम्पॉसिबल भी था, कुछ भी मांग रहे हो आप। फिर बाद में आएगा इकोनॉमिक्स डिमांड, बताऊं ना, वेट, इन लोगों ने सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया था कि जो भी एग्जाम होगा, अब इंडियंस और इंग्लिश मतलब ब्रिटिश साथ में उन लोग का लेवल एक ही होगा, लेकिन एग्जाम होगा लंदन में, एग्जाम ओपन फॉर ऑल, और लेजिस्लेटिव को उन्होंने बढ़ा दिया था, और भी बहुत सारे टर्म्स थे जो ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट किया था। वो तो चैप्टर एक्ट हुआ था ना कि इंडियंस भी जाके एग्जाम दे सकते हैं लंदन में, किसमें हुआ था, 1853 में, ठीक है, दे सकते थे, लेकिन वो लेवल इतना ओपन फॉर ऑल किया, इट वाज ओपन फॉर ऑल, और इसमें क्या किया, इसमें मतलब लेवल सेम रखा, ठीक है, लेवल सेम रखा था, आप लोग लेवल सेम रख सकते हो। और उस समय क्या था, उस समय सिविल सर्वेंट जो भी इंडियंस आएगा वो लो पोस्ट पे जाएगा, वो हायर पोस्ट पे नहीं जाएगा, लेकिन इन लोगों ने डिमांड किया था कि आप हायर पोस्ट पे भी आप रखो इंडियंस को, ठीक है। जो वो एग्जाम बंदा दे रहा है और वही एग्जाम जब इंडियंस दे रहा है, तो दोनों का तो पेपर जब हार्ड रह रहा है, वही कंडीशन है, तो आप पोस्ट आप दोनों को एक जैसे क्यों नहीं दे, आप दोनों को एक जैसे पोस्ट, समझा। तो इन लोग का ये डिमांड था, ठीक है। तो फिर अब आएगा सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला क्या है, इकोनॉमिक डिमांड। इकोनॉमिक डिमांड्स, इन लोग का इकोनॉमिक डिमांड क्या था, सॉल्ट टैक्स और जो शुगर ड्यूटी है उसे एबॉलिश करो, ठीक है, जो कि अंत समय तक भी नहीं होगा। इसके लिए तो गांधी जी ने किया था ना दांडी मार्च, तो इन्होंने इसके लिए किया था, सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी टू बी एबॉलिश्ड, रिडक्शन इन द आर्मी एक्सपेंडिचर, फिर से तुमने इम्पॉसिबल वाले बात कर दिए, रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड देयर बाय डिक्रीज द बर्डन ऑन कल्टीवेटर्स, ठीक है, जो रेवेन्यू था उसको तुम डिक्रीज करो, और जो भी बर्डन ज्यादा जो डीजल पे आ रहा है वो कल्टीवेटर पे आ रहा है उससे आप खत्म करो। जब ये हो जाता तो गांधी जी को तो आगे चंपारण था ना पहला, वो
चंपारण चंपारण सत्याग्रह तो उनको तो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। बिहार में वो साबरमती वो सॉल्ट के लिए था, पहले हुआ था चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जहां पर उन्होंने वो ज्यादा टैक्स के वजह से उन्होंने वहां पर ज्यादा जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो ऑफकोर्स इंडिगो वाला ही था ना वो, तीन खटिया सिस्टम, ठीक है, 3 खटिया सिस्टम वो आगे आएगा। फिर भी ये जो तुमने जो बोला है कि रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये भी हम नहीं कर सकते। encouragement of the modern industries by a government acts and tariff protection, ये तुमने फिर से ये तुमने कौन सी डिमांड मांगी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज हम लोग इंडिया में खोलना है और उसका ये उसको गवर्नमेंट ऐड देगा और उसे टैरिफ प्रोटेक्शन भी देगा, मतलब हम ऐड भी दे और उस पे हम कोई टैरिफ भी ना लगा, तो ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ इन लोग के डिमांड थे। और थर्ड वाला डिमांड था एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन ब्रिटेन, ठीक है। अब जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम, अब जैसे सिर्फ पहले क्या होता था, पहले सिर्फ इंग्लैंड में उसका एग्जाम होगा, उसका सेंटर कहाँ पर पड़ता था, इंग्लैंड में ही पड़ता था। लेकिन अब जैसे इंग्लैंड में आप एग्जाम रख रहे हो वैसे ही आपको इंडिया में भी रखना पड़ेगा, ताकि इंडियंस का जो स्टूडेंट है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, वो जाके इंडिया में एग्जाम दे और वहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम दे, तो साइमल्टेनियसली दोनों जगह एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। लोकल बॉडीज वेयर टू बी गिवन अ मोर पावर, जो भी लोकल बॉडीज है उन्हें मोर पावर दीजिए, ताकि वो अपने लोकेलिटी में या अपने एरिया में वो कुछ अच्छा काम कर पाए या कुछ ज्यादा काम कर पाए, या जो भी डिसीजन उनको लेना है वो तुरंत वो डिसाइड कर पाए, ठीक। फिर बाद में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव तो किसके पास था, गवर्नर के पास ही था, ठीक है, वाइसरॉय। लेकिन अब ये लोग डिमांड कर रहे थे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव। स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, आपको एजुकेशन स्प्रेड करना है, प्राइमरी एजुकेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश के जितने भी एक्ट थे वो प्राइमरी एजुकेशन पे कम ध्यान दे रहे थे, वो सेकेंडरी लेवल पे वो ज्यादा बातें कर रहे थे, मतलब हायर एजुकेशन पे वो ज्यादा बातें कर रहे थे, वो ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब आपका प्राइमरी एजुकेशन ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप हायर एजुकेशन पे पॉलिसीज बना के आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट 1878 एंड लाइसेंस एक्ट। आर्म एक्ट मतलब पहले के जमींदार लोग के पास गोली बंदूक रहता था, ठीक है, तो उन्होंने लगाया था एक्ट कि आप लोग ये नहीं रख सकते गोली बंदूक, आपको हमारे पास जमा कर दीजिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो पहले की लोगों की शान थी वो, तो लोगों की शान चली गई, तो वही बोला कि आप लोगों ने जो ये आर्म्स एक्ट लगाया तो इसे आप हटाइए, इसको आप रिपील कीजिए और इसे आप मतलब जो भी जिसका जैसे सिस्टम तो वैसे आप इसे आप चालू कीजिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, पहले तो आप लोग बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब उन लोग का कंडीशन इंप्रूव कीजिए, उन लोग का सैलरी बढ़ाइए और एक्सप्लॉइटेशन आप थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन एब्रोड, ठीक है, इंडिया में इंडियन लेबर को कोई इज्जत नहीं मिल रहा था तो एब्रोड में क्या मिले। अगर ब्रिटिश का कहीं पर अगर काम था तो इंडिया से भी, जैसे कि उन लोग को तो कम पैसा देना पड़ता था इंडियन लेबर्स को, अगर वो यूरोप से बुला देते तो उन लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ता था, तो ये इंडिया से भी लेबर्स उठा के लेके जाते थे एब्रोड में अपना काम करवाने के लिए। तो जब इंडिया में इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो एब्रोड में क्या होता होगा, ठीक है। तो यही इन लोग का डिमांड था कि बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन एब्रोड, ठीक है। इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर, ठीक है, जो आर्मी का एक्सपेंडिचर है उसको आप कट कीजिए और उसको वेलफेयर में लगाइए, ठीक है। अब इन लोग का आएगा सिविल राइट डिमांड।
सिविल राइट डिमांड्स। सिविल राइट डिमांड में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि कोई भी आदमी मतलब 4-5 या 10-12 ग्रुप बना के हम लोग कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि वो देंगे नहीं, ठीक है। राइट टू फ्री प्रेस, वो फिर से ये भी नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, जब मैं न्यूज़पेपर का एक्ट, जो भी पेपर का एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मैं ये पढ़ाऊंगा, तो स्टार्टिंग से वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लाइसेंस एक्ट, वो लोग बहुत सारे एक्ट लाते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये भी राइट टू फ्री प्रेस को भी उन लोग नहीं मानते, और राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ये भी हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। और उन लोगों का क्या डिमांड था इसमें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। ये सब उनके डिमांड थे। अब इन लोग के अचीवमेंट पे थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है। इन लोग के अचीवमेंट क्या है, क्रिएटेड अ नेशन वाइड अवेकिंग, ठीक है। पूरे नेशन को उन लोगों ने, मतलब ज्यादा इन लोगों ने अवेकिंग किया था। फीलिंग ऑफ द वन नेशन, ठीक है, हम एक ही राष्ट्र के हैं, ऐसा उन लोगों ने फीलिंग जगा दी थी लोगों में कि हम लोग सब एक ही राष्ट्र के हैं। पासिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। जो भी इन लोगों ने, जो भी उस समय इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास हुआ था 1892 में, उसमें हमारे मॉडरेट्स का बहुत बड़ा हाथ, ठीक है। फिर बाद में एक्सपोज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश। ऑफ कोर्स ब्रेन ऑफ वेल्थ लाने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ही वाज द मॉडरेट, ठीक है। सो वही मैं बोला कि एक्सपोज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886, ठीक है। ब्रिटिश ने एक कमीशन अपॉइंट किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि हम लोग कुछ रिफॉर्म कर पाए इंडियंस के लिए पब्लिक सर्विस में। तो ये भी एक उन लोग का अचीवमेंट था। इन लोग का डिमांड था कि पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस में, सिविल सर्विस में कुछ आप रिफॉर्म कीजिए। तो वो रिफॉर्म करने के लिए ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886। पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है। ये जो भी चारों मैंने बोला, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म, इसे पॉपुलर मॉडरेट लीडर ने किया था। फिर बाद में कंडक्टिंग द साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। इन लोग के जो डिमांड था कि आप साइमल्टेनियसली इंडिया में भी करवाओ एग्जाम और इंग्लैंड में भी, उसे भी मान लिया गया, ठीक है। तो ये सब इन लोग के अचीवमेंट थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने एग्जाम उन्होंने पहले इंग्लैंड में जाके दिया, एंड ये पास द ट्वाइस। उन्होंने 2 बार सिविल सर्विस पास किया, और 86 में अपना उसका भी इंडिया में चालू। हाँ, फिर बाद हाँ उन्होंने इंग्लैंड में जाके दिया था, और इंग्लैंड में देने के बावजूद he was able to crack the 2 times, 2 टाइम उन्होंने क्रैक किया था। फर्स्ट टाइम में उनका एज ही छोटा था, इसलिए उनको निकाल दिया गया था, और सेकेंड टाइम में उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से निकाल दिया गया। एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके लिए तो पहले मतलब जो पास हो गए, बट एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर बाद में उनके बाद में तो बहुत सारे पास हो गए थे ना, बहुत सारे पास हो गए थे। उन्होंने 2 बार, उन्होंने ट्वाइस उन्होंने क्रैक किया था एग्जाम। फर्स्ट टाइम उन्होंने जब क्रैक, नो यूज, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्रैक किया था, तो उनको ये बोल के निकाला गया था कि अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है, अभी हम तुमको नहीं ले सकते। और सेकंड टाइम में जब उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसके लिए 2 बार निकाल दिए एग्जाम। अभी मैं इन लोग के एक एक लीडर के ऊपर में, ठीक है, एक एक लीडर के ऊपर में बात करूंगा। एक एक लीडर ने क्या क्या किया था उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, है ना।
दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ही वाज द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो वहां पर जाके तो सब बता रहे थे ना कि आपके ब्रिटिश हमारे इंडिया में क्या अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग देखो, और हमारा कैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ, लोग कैसा हमारे सब को ड्रेन कर रहे हैं, आप लोग देखो। तो ही वाज द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। वो भी थे फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन, one of founding member of Indian National Congress. Of course, जब वो founding हो रहा था तब ये भी साथ में थे। He was the founding member of Indian National Congress, preside over the 3 Congress session, drain wealth theory इन्होंने ही लाए थे, और इनका बुक था Poverty and Un-British Rule in India. Poverty and Un-British Rule in India, ये एक बुक था, और इसी बुक में इन्होंने जिक्र किया था इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने समझाया था कि ब्रिटिश हमारे कैसे वेल्थ को वो ड्रेन कर रहे हैं और कैसे हमारे वेल्थ को सीधा भेज रहे हैं ब्रिटेन। फिर बाद में आएंगे फिरोज शाह मेहता, लॉयन ऑफ बॉम्बे, इनको लॉयन ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है, लॉयन ऑफ बॉम्बे। इन 1890 he was chosen at the in 1890 he was chosen as the president of Indian National Congress। ठीक है, उन्होंने कुछ पेपर भी निकाला था बॉम्बे। हाँ, सेकंड लीडर थे प्रेसिडेंट, पहले तो इनको मतलब बनाया गया। ठीक है, पहले थे ये, पहले ऐसा होता था ना सर, हर एक सेशन में एक प्रेसिडेंट। हाँ, और एक सेशन का एक प्रेसिडेंट, और वो अलग अलग रहेगा, और जो भी सेशन होगा वो रोटेट होता रहे, वो एक जगह नहीं होगा। और जो भी प्रेसिडेंट होगा जहां पर वो स्टेट का वो नहीं होगा। अगर जो सेशन है वो अगर बंगाल में हो रहा है तो वहां का प्रेसिडेंट बंगाल का नहीं होगा, वो कहीं और का, या तो महाराष्ट्र का रहेगा या तो पंजाब का रहेगा। हाँ, उमेश चंद्र बैनर्जी जो बंगाल के, तो ऐसा ही उन लोग का चल रहा था। ठीक है, ओके कहां पर, हाँ, उनका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, वो है बॉम्बे क्रॉनिकल। इट वाज द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर जो इन्होंने 1910 में लाया। ठीक है, इट वाज द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, वो वीकली निकालते थे जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, फिर बाद में आए थे उमेश चंद्र बैनर्जी, co-founder of Indian National Congress। ठीक है, he was the Indian barrister, he was the first president of Indian National Congress, he was the first Indian to contest the election in British House of Commons। ठीक है, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने वहां पर जाके लड़ा था, कॉन्टेस्ट किया था इंडियन ब्रिटिश कॉमन में, मगर वो हार गए थे। तभी तो दादा भाई नेहरू जी was the first common to sit in the ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, फिर बाद में आए थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, क्या हो सकता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, he was the he founded the Indian National Association। ठीक है, he founded the Indian National Association to bring out the political reforms। ठीक है, to bring out the political reform, he cleared the ICS exam twice। ठीक है, Indian Civil Service, ठीक है, Indian Civil Service exam in twice, in 1869 and in 1871। First time he was dismissed due to the age, and second time he was dismissed due to the racial discrimination। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर है सर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सेम रीजन हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सत्येंद्रनाथ टैगोर के भी रीजन सेम थे। No, wasn't that for law commission? That was Satyendranath। Yes। he was also a civil servant, he was
अभी अपन ने किसका नाम लिया? ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन्होंने भी एग्जाम दिया था इंग्लैंड में और उन्होंने भी एग्जाम दिया था इंग्लैंड में। दोनों ने भी इंग्लैंड में एग्जाम दिया था, बट दे वाज नॉट एबल टू जॉइन। क्योंकि दोनों का रीजन आपने सेम बताया ना, इसलिए मैं पूछता कि नहीं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहेगा। उन्होंने एक बार ही पास किया था, जिसका नाम था फर्स्ट वन कौन था? वो टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ही वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जिन्होंने पास किया था। एक ही बार पास किया था, बट ही वाज, यहाँ पर नाम सत्येंद्र और सुरेंद्र, ठीक है। तो उन्होंने, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जाम, लेकिन उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। और देयर वाज नो रीजन, ही वाज, मतलब उनको इंटरेस्ट था ही नहीं, उनके फैमिली के प्रेशर की वजह से ही वाज गॉन टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। उनको मतलब ब्रिटेन की सिविल सर्विस में उनको कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं। उनके फैमिली ज्यादा फोर्स कर रही थी कि यू शुड गो या टैगोर पर कि आप जाओ और आप जाके सिविल सर्विस एग्जाम दो। तो उन्होंने बस फैमिली के लिए उन्होंने क्रैक किया। और दो बार क्रैक नहीं, दो बार क्रैक करने वाले थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है। ये क्रैक द ट्वाइस टाइम, ठीक है। In 1869 he was dismissed due to the age, and in 1871 he was dismissed due to the racial discrimination, ठीक है। What is the racial? Black and white. इसके लिए उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि उन लोग के नखरे भी तो बहुत थे ना कि आप लोग नहीं आ सकते, ये सब तो दिखाने के लिए तो उन लोग ने हाँ कर दिया था, लेकिन फिर भी उन लोग का चल रहा था, क्योंकि ही वाज द, इनको निकाल दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में उनको एज की वजह से निकाला गया था, और सेकंड में बिकॉज ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। he proposed the civil disobedience movement, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन्होंने एक बात, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था कि ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। एक बार मतलब ये होना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसको होना चाहिए, इस प्रपोज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। फिर बाद में आएंगे सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्य MANIA, सुब्रमण्य अय्यर, हाँ सुब्रमण्य अय्यर, co-founder of Madras Mahajan Sabha. He was the co-founder of Madras Mahajan Sabha. He started a two paper. जो first paper was English, जो बोलते द हिंदू, जो हम अभी भी पढ़ते द हिंदू, ठीक है। It was the English paper. और हाँ उन्होंने जो स्टार्ट किया था, सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने स्टार्ट किया था द हिंदू इंग्लिश पेपर एंड स्वदेश मित्रा इन तमिल, ठीक है। फर्स्ट पेपर वाज हिंदू इन इंग्लिश, द हिंदू इन इंग्लिश, एंड सेकंड वाज स्वदेश मित्रा इन तमिल। एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था। जस्ट फिर बाद में आते हैं जस्टिस MG राणा, ठीक है। अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राय बहादुर, ठीक है। इनको टाइटल भी मिला था ब्रिटिश से, ब्रिटिश इनको बोलते थे राय बहादुर। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेड पुणे सार्वजनिक सभा, इन्होंने बहुत सारे सभा भी इन्होंने सामाजिक बना के रखे थे। फाउंडेड द पुणे सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, यानी फाउंडेड द अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एग्जाम पे क्वेश्चन, एग्जाम में ये पुणे सार्वजनिक सभा पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिविल सर्विस के प्रीलिम। He was also one of the founder of Widow Marriage Association, ठीक है। Widow Remarriage Association इन्होंने ही फाउंड किया था। फिर बाद में आते रीमैरिज को उन्होंने फाउंड, मतलब एसोसिएशन उन्होंने बना के रखा था, एक विडो रीमैरिज। गवर्नर ही था ना वो, विलियम बेंटिक, सती को नहीं रीमैरिज उसने नहीं किया था,
रीमैरिज इसने नहीं किया था, वो डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने रीमैरिज एक्ट जो था वो डलहौजी ने निकाला था। और जो सती एक्ट को, जो सती को रोकने का एक्ट जो था वो विलियम बेंटिक ने पास किया था राजा राम मोहन रॉय के साथ। आगे का टॉपिक है, इसके साथ मिक्स मत करो। फिर बाद में 7th वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, founded servant of Indian society. He campaigned for self rule in India. ठीक है, सेल्फ रूल इन इंडिया। कौन है ये? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और आगे ये रहेगा ना एक्सट्रीमिक फेज, ठीक है, जिसमें सारे जितने भी थे एक्सट्रीमिक, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, लाला लाजपत राय, नहीं तीनों, लाल वाल पाल,